Topic strategic management. One topic is financial management, one topic is strategic management. Now, what do we mean by strategic management and what do we mean by financial management? Financial management is mainly related to money matters, finance related. But strategic management is coverage or having coverage more than financial management. Financial management, you can say, is one part of strategic management. Strategy, when we use the word strategy, it is a military word. Military word, what the main object of the military? That one word is defense, one word is offense. Defense means how you will save yourself. This is known as defense. Our military main object is defense. And one word is offense. How you can take action against others. Okay? So what strategy is a military word? They make plan programs. Similarly, in business, if you want success, if you want to achieve your goal, you want to fulfill your objectives, then only answer is you have to make a straightforward or adjustable or proper strategy. And who will make these all? Answer is management. Organization. Here organization may be proprietorship, partnership, LLP, company, society, whatever. So they have to make a strategy and follow the strategy, and later on, wherever required, adjust in the strategy, but final object is achieve the target. Now, this topic importance is how a businessman, how a successful businessman, how economics thinks, what is good for the company, what is good for the country. First is you have to save yourself. Public welfare is not a strategy. When you are doing business, first you have to save yourself, then think of public. Because survival of the fittest, everything is okay, but finally, unless you don't protect yourself, you don't have profit, you don't have reserve surplus, you will not survive. And if you will not survive, how you will achieve your object? So, in business, having profit is not bad. You have to earn profit, otherwise you will not survive. If you don't have sufficient revenue, how you will pay to employees? How you will meet the expenses? Okay? Paying tax is also helping the society. If you pay tax, you are helping the society. So it is not that you are not helping the society. Tax structure, country like India, each and everyone, even a beggar if earns more than a limit, then he has also to pay tax. Any person. This type of thing comes, should beggar pay? So question is, what is the meaning of beggar? Businessman is also doing, others also doing. Style, सिंगर लोग गाना गाता है, लोग पैसा देता है, रास्ता में भी बहुत कोई भिख मंगा लोग है, बढ़िया गाना सुनाया, सब दे दिया 2-4-5 रुपए, तो उसको बेगर बोला जाता है, लेकिन सिंगर को तो नहीं बोल रहा है बेगर। ये समझने का केस है। व्हाट इज बेगर? बिजनेसमैन है, सामान देता है, पैसा लेता है, ज्यादा ले लेता है, एक्स्ट्रा को क्या बोले। इसी तरह से व्हाट इज बेगिंग, ये सब भी बड़ा क्वेश्चन वाला पार्ट है। ठीक है, बेगर में भी स्टाइल होता है। तो एनीवे, आवर मेन कंसर्न इज business. Big organizations
say successful entrepreneurs, best Tata, Birla, Reliance, okay, Mahindra and Mahindra, number of big, means hundreds. If you add 500s, you can add thousands. Okay? So each organization, they have a strategy. They follow the strategy, fulfill their objects, achieve the target, new targets they set. Best, our Indian part itself. Okay? So from local, we are moving towards globalization. So taking part, how they made a strategy, succeed, achieved, making new targets. Okay? Question is, what do we mean by globalization? Globe किसको बोलते हैं? अर्थ को देखें हैं? आप इंडिया से बाहर निकलो, इंडिया के बाहर कुछ करो, इंडिया के बाहर माल सप्लाई दो, एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, बाहर से कनेक्ट हो. आपका बिजनेस इंडिया के बाहर से भी है. आपका बिजनेस इंडिया के बाहर से मतलब आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, तो इसको क्या बोलेंगे? आप ग्लोबल, आउटसाइड द कंट्री. दूसरा किया आप लोकल, आप ग्लोबल में नहीं जाओगे, आपको बॉर्डर क्रॉस करो, आपका सामान जाएगा, आएगा, आप ग्लोबल में जा रहे. ठीक है, बोलो क्या बोल रहे हैं? So strategy one has to make, and if we don't have any strategy, then you are like doing anything. If you don't have a strategy, what you want to do, you don't know, then what you are doing? Always there is some strategy. Otherwise, what to do, you don't know. Everyone has to make a strategy. They have to impose a limitation also. They have to impose a limitation also. You have to make a strategy within your limits. Within your limits. And within your limits, within your resources, you have to make a strategy. If your resource increasing, you have to reset your strategy. So strategy, here content, here interesting is, best example is think big businessman. They set factory, successful, fulfilled, achieved target, expansion. They set another factory, again achieved, another factory, again achieved, more expansion. Then they move. So what happens here? All concepts are part of strategy. Okay? So whatever you are doing under strategy, here interesting is, whatever you think, whatever you do, whatever you expect, not necessary 100% as per your plan program. But if direction is okay, we say successful. This topic chapter from first to last we will be discussing. And what is interesting, first to last discussion, you will think just like we are in the same trend. Business success is depending on strategy. Okay? Now, different words are there, but all are interconnected. So, strategic management, what we have to cover, it's a vast subject. Everything is part of that. So, regarding when we talk about syllabus, introduction to strategic management, what the strategic management is. You know, full MBA course, full MBA course,
Okay, there what you do? Strategic management. Okay, so nowadays, why this type of things included in CA curriculum, CA syllabus, or CS also you have, CMA also you have. Nowadays, all included. Earlier, it was not in the syllabus. So now they are saying that a professional should be dynamic. Professional should be dynamic. Dynamic means, suppose, example, CA. Not necessarily CA means only do audit, tax and this. They should be in a position they can carry on big business also. ऐसा नहीं है कि खाली दूसरे का संभालना है, चेक करना है. आप खुद बिजनेस करो. आप खुद बिजनेस करो. तो you should have knowledge of management also. You should have knowledge of management. So if you have knowledge of management, naturally your way of thinking will be fast. आप और अच्छा से ऑडिट कर सकते हो, और अच्छा से चेक कर सकते हो, और अच्छा से प्लान प्रोग्राम बना सकते हो. ओके, सो स्पेशली कॉमर्स रिलेटेड, कॉमर्स you must have good idea. So introduction to strategic management, strategic analysis, external environment, internal environment. External क्या है? आपके सराउंडिंग्स के बाहर. एक्सटर्नल आप जो कर रहे हो, आपसे क्लोज रिलेटेड जो है वो इंटरनल. सो प्रॉपर एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट. अब है स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी ये तो अनलिमिटेड टाइप का वर्ड हो गया. तो आपको तो लिमिट करना होगा, चॉइस करना होगा. आप क्या चाहते हो? वेगनेस, नो रिजल्ट. सो वर्ड कम्स choices. And last is whatever decision taken, choice, external, internal, everything. Finally, what you do? Implementation. Okay? You will put your plan, programs in action, and regularly evaluation is going on. Regularly evaluation is going on. So what we see, all are interconnected. So first is strategic management, then analysis, external, internal, then choices, then implementation and evaluation. So these are the 5 topics or chapters, you say, which one by one we have to cover. So first we are in introduction to strategic management. ठीक है? So strategy, as I said, full MBA, Master of Business Administration. इसमें ध्यान रखना है regarding business. One is you do in your own, आप खुद कर रहे हो. One is you have appointed peoples. You have appointed, they will do business for you. This is also one strategy. Best example is Ratan Tata. So many businesses. Question is he involved directly? No. But everything is running? Yes. Again, best example, Ratan Tata. Even after his death, all the business running successfully. Yes. It is not death, business end. No, business not end. Business going on. How? He has done management things organized in such a way that even after death, business running as usual. So it means death has also not caused the business adversely affected. Normally what happens? Business. Now here interesting is, one word comes legal years. That is also not there. But he did the things in such a way, managed. Even if he is not there, things will go on. So what he did? Management.
Got it? So, and target, let everyone be happy, everyone be faithful, everyone be faithful and happy, and things going on. Okay? You see, public service also done, company also running, consumers also happy, brand building is also there. Okay? National, international, social security is there. Got my point? So one can learn. One can learn. Okay? Tax evasion is also not there. This is very interesting. Normally what happens? Maximum target is what to do tax can be avoided. Tax evasion. Tata not doing this all. Okay? So what we see, how management works. It is under strategy. So one word is conglomerization. What happens? All varieties going on, different, selling salt also, trucks also, car also, in aviation industry also. कहने का मतलब मैनेजमेंट क्या है? Management, but one plus point is there, good thing is there. What he said, that he keeps MBA in job, but for finalization, anything, it is going through the table of CA. समझ गए? ये इट्स अ ग्रेट थिंग. बोला रखे हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फाइनल डिसीजन सीए का टेबल होके ही आएगा. इसका मतलब समथिंग इज देयर. कुछ तो है, लेकिन कुछ तो है का मतलब नहीं है कि डिग्री होने से ही सब कुछ हो गया. यू हैव टू बी डायनामिक. विजन माने आपका सोचने का तरीका वैसा होना चाहिए. मीन्स प्रॉन्स एंड कॉन्स. Our total study in this strategic management will be in this way only. यही सब हम लोग को समझ गए. बड़ा बड़ा बिजनेसमैन मालूम है, वो ऑफिस में बैठा रहता है, करता क्या है? बस सबको डील कर रहा है. वो कोई टाइपिंग नहीं करता है, वो कोई बैलेंस शीट बैठ के नहीं बनाता है. वो खाली वॉच रखता है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक कर रहा है, खराब कर रहा है, बेटर क्यों नहीं कर रहा है. ये काम है. कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, रिप्लेस करो. होता है. Management, how he is managing strategically. But one thing we have to keep in mind, that things should be within limits, within your resource. Within your resource. Yes, समझे? And again, total ये डिस्कशन ही पूरा ऐसे ही है. मैंने पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट. ओनली व्हाट वी लर्न एनालिसिस. सी दो 2 चैप्टर्स आर देयर. एनालिसिस, एक्सटर्नल, इंटरनल. मतलब व्हाट वी हैव डिस्कस्ड यही है. बस इसी में क्या है, हर में एक एक पॉइंट ऐड होता जाएगा, माइनस होता जाएगा, एनालिसिस चलता रहेगा. ठीक है. फिर से आप क्वालिफाइड हो गए, डिग्री आपके हाथ में आ गया, आप क्या करोगे?
तो आप बोले हम ऑडिट करेंगे, कोई बोला हम कॉस्ट ऑडिट करेंगे, कोई बोला कंपनी मैटर संभालेंगे। आप एक मैटर संभाल रहे हो, वो पूरा कंपनी चला रहा है। आप एक बात कर रहे हो, वो सीए का भी काम करवा रहा है, कॉस्टिंग का भी करवा रहा है, सीएस का भी करवा रहा है। क्या लगता है वो बुका है? चलो आप ही को कंपनी का मालिक बना दिया। क्या लगता है उसको मालूम नहीं है, उसको काम कराना है। चलो आप तो डॉक्टर नहीं हो, आपका शरीर खराब हो गया तो आप क्या करते हो? डॉक्टर बन जाते हो या डॉक्टर का हेल्प लिए? दवाई काम किया, डॉक्टर सही है, नहीं हटाओ डॉक्टर, दूसरा को रखो। यही होता है ना। दूसरा नहीं काम किया, तीसरा को लाओ। लास्ट में जाना कंफर्म है, वो आपको भी मालूम है। ऊपर तो जाना ही होगा कि नहीं जाना है, लेकिन आप क्या करोगे? जो बेस्ट है सिलेक्ट करोगे। अगर सिलेक्ट फर्स्ट टाइम में बेस्ट हो गया, नहीं हुआ सेकंड में बेस्ट होगा। कौन सा डॉक्टर लेना है तो वो भी आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो ना। कैसे बनाते हो वो आपके ऊपर में, खुद बनाते हो, कंसल्ट करते हो किसी से, पॉसिबल। एक प्लान प्रोग्राम है, एक हर चीज में स्ट्रैटेजी होता है। यहां से आप घर जाओगे तो पैदल जाओगे, साइकिल से जाओगे, स्कूटर से जाओगे, बाइक से जाओगे, बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे। एक प्लान बनाते हो और पहुंचते हो। कभी कभी गड़बड़ा जाता है रास्ता, पकड़ लिए, बोले क्यों बस में बैठ गए, भीड़ है, ट्रेन से चले जाते। डिसीजंस आर रॉन्ग। होता है ना, हर चीज में स्ट्रैटेजी है। आप बिजनेस में एक प्लान प्रोग्राम बनाए, आगे बढ़े, थिंग्स हैपनिंग एज पर योर इंटरनल। क्या है? इट इज इन योर हैंड। व्हाट इज एक्सटर्नल? नॉट इन योर हैंड। आप सामान को प्रोडक्शन किए, बाजार में बेचने गए, यहां तक आपके हाथ में। मार्केट एक्सेप्ट किया नहीं किया, ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। ये समझे? टाटा सॉल्ट बनाया, मार्केट में स्प्रेड कर दिया, अब फाइनली तो कंज्यूमर डिसाइड करेगा ना। कंज्यूमर के पास 5-6 ऑप्शन है। टाटा सॉल्ट है प्लस और भी 5 सॉल्ट है। यू हैव टू मेक स्ट्रेटेजी व्हाट टू डू, दे विल बाय योर सॉल्ट। आपको स्ट्रेटेजी बनाना होगा। हाउ टू मेक स्ट्रेटेजी, हु विल मेक, कंज्यूमर और सेलर? मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी होता है। एक होता है आप रिटेलर को बोल दिया बेचोगे तो तुमको ज्यादा कमीशन देंगे, स्ट्रेटेजी। एक हुआ तुमको कुछ नहीं करना है, मांगेगा देना, नहीं मांगेगा मत देना। क्या समझे? बोला हम टीवी ऐड दे दे रहा है, कंज्यूमर डिमांड खुद करेगा, पॉसिबल। कहीं पर आप गए, दुकानदार को बोले कमीशन ज्यादा देंगे, माल बेचना। कौन बेच रहा है? दुकानदार जबरदस्ती बेच रहा है पैसा के लिए। स्ट्रेटेजी। फाइनल डिस्कशन कंज्यूमर का ही है सर। फिर हम क्या बोले, ये प्लान प्रोग्राम कौन बनाएगा? तो मैनेजमेंट बोला आप लोग को कुछ नहीं करना है, कंज्यूमर खुद आएगा मांगेगा। कंज्यूमर खुद डिमांड करेगा कि हमको ये वाला दो। तो वो खर्च क्या किया? रिटेलर पर नहीं खर्च कर पाया, वो मोड चेंज कर दिया, वो मोड चेंज कर दिया। बहुत सा प्रोडक्ट है, आप देखोगे एड में लाइन का आदमी लेके ऐड करता है। लाइन का आदमी माने उसी लाइन का है, उससे ऐड करवाता है। और एक ऐड होता है जिसमें वो लाइन से कोई मतलब ही नहीं है, उसको बोला ऐड करो। तो अंतर है ना।
strategy. Decision management has to take. Decision management has to take. सर जितना अच्छा स्ट्रेटजी बनाएगा सर उतना खर्च भी तो उतना ज्यादा होगा. लिमिट क्या बोले? विद इन योर लिमिट, विद इन योर रिसोर्स. आपके पॉकेट में 1,00,000 रुपया है, बोले 1 करोड़ का ऐड करेंगे, कैसे करोगे? नहीं होगा. तो आपको स्ट्रेटजी बदलना होगा ना. यस. और स्ट्रेटजी गलत बना दिए तो बिजनेस डूब जाएगा. डूब जाओगे. नॉन एग्जिस्टेंस हो जाएगा. बिजनेस इज हिस्ट्री. ठीक है. एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. ये समझे? बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क. चल वापस. So this point is clear. Now write down meaning and so out of 5, first introduction to strategic management. So meaning and nature of strategic management. What is strategic management? Okay. So it is in two sense. It is in two senses. A. So this is with reference to key group in the organization in charge of its affairs. मैनेजमेंट क्या है? अकेला नहीं है, टीम है. की का मतलब मेन पोजीशन. शॉर्ट में डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, they hold positions. So charge of its affairs मतलब वो लोग का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो टेक केयर करेगा. The task of bringing together and integrate the disorganized resources of manpower. मतलब है सब कुछ, ऑर्गेनाइज नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड है. क्या करना होगा? सबको एक जगह लाना होगा, इंटीग्रेट करना होगा. तो मैन पावर अरेंज करना होगा. काम किससे कराना है? पर्सन से. तो मैन पावर लाना होगा. मनी भी चाहिए, फंड नहीं है, फंड अरेंज करना होगा. मटेरियल चाहिए, आदमी है, पैसा है, सामान चाहिए. मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी. काम कैसे होगा? तो टेक्नोलॉजी जैसे भी काम हो, लो एंड, हाई एंड, मिडिल एंड, विच आर देन कंबाइंड into a functioning whole. और सब मिलके काम होना शुरू हो जाएगा. That is functioning whole. Management has to also facilitate organizational change and adaptation for effective interaction with the environment. Meaning, तो सब मिलके हुआ, जहां जरूरत होगा वहां थोड़ा चेंज भी करेंगे. That is organizational change. और जो बेस्ट होगा, इफेक्टिव, उसको अडॉप्ट करेंगे. ठीक है. दैट इज इफेक्टिव इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट. ऐसा करेंगे, सबको लेंगे, बेस्ट डिसीजन लेंगे और एनवायरमेंट में जो सक्सेस होगा उसको अडॉप्ट कर लेंगे और काम करेंगे. सेकेंड है द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड विथ रेफरेंस टू अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेस. तो इंटर रिलेटेड फंक्शंस and process carried out by the management of an organization. The key groups of individuals mentioned in point A, वही लोग हैं, same. ठीक है. To attain its objectives, these functions include planning, ये very important word है. Planning, organizing, directing, staffing and control. नाउ यहां पर ध्यान रखना है. नाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सब्जेक्ट था. बिजनेस, ठीक है. कोई भी चीज जाता नहीं है, सब है. सिलेबस इधर उधर बदल के रखता है, सब कोई चीज नहीं गया है. ये सब ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी. तो बिजनेस, ठीक है. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो वो भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है.
तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये सब मैंने इस 5 वर्ड पर बहुत ध्यान दिया जाता है। प्लानिंग, पहले तो आपको प्लान करना होगा, फिर ऑर्गेनाइज करना होगा, फिर डायरेक्ट करना होगा, फिर आप करोगे कैसे, पीपल चाहिए, स्टाफ अपॉइंट करना होगा सब काम के लिए, और फाइनली आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे है तो हम लोग बोलेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो प्लानिंग, organizing, directing, staffing, control. So management is an influence process to make things happen, to gain command over phenomena, to induce and direct events and people in a particular manner. अब फाइनली क्या करना होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए, थिंग्स हैपन। कैसे होना चाहिए, आपके हिसाब से, आपके प्लान प्रोग्राम से होना चाहिए, और पीपल से लेना है, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन एज पर योर प्लान प्रोग्राम। नाउ द थिंग इज, आपका बात सब कोई क्यों सुनेगा, ये बात सुनने का मतलब क्या हुआ, जैसे लीडर लोग का बात सुनता है, क्यों सुनता है, इन्फ्लुएंसिंग पावर। बिजनेस में इन्फ्लुएंसिंग पावर क्या है, सो ये पावर बैक्ड बाय पावर। पावर क्या है, बात नहीं सुनेंगे, काम नहीं करेंगे, हमको निकाल बाहर कर देगा। जैसे बैंक में स्टाफ लोग काम करता है, मैनेजर लोग का बात सुनना पड़ता है, उसको डर क्या है, मैनेजर रिपोर्ट कर देगा, शिफ्ट कर देगा, उसको गांव भेज देगा, जाओ। वो बोलेगा नहीं करेंगे, बोला घर जाओ, ठीक है। एक डर होता है ना मन में, मैनेजर का टारगेट है, सोचो ऑर्गेनाइजेशन में ब्रांच, एक लोअर लेवल में ब्रांच मैनेजर, तो ब्रांच मैनेजर को कुछ पावर है ना, किस स्टाफ को कौन सा डिपार्टमेंट देगा, किसको कौन सा चेयर देगा, रिसफलिंग होता है स्टाफ लोग का वर्क में, कौन करता है, मैनेजर। उसका ड्यूटी है करना, उसको ड्यूटी में डाल दिया, कैसे समझे। तो बहुत सा काम अच्छा होता है, खराब होता है, बहुत का है, बोलेगा नहीं ये नॉट फिट, कोई भी काम ठीक से नहीं करता है, रिपोर्टिंग होता है ना, पॉसिबल। तो कहने का मतलब इन्फ्लुएंस कहां से आ रहा है, बैक्ड बाय पावर। आई थिंक गॉट इट। सो दिस इज पावर। कंपिटेंस, पावर, फिर साथ में कंपिटेंस। कंपिटेंस का मतलब पावर को यूज करना जानता है, कंपिटेंट पर्सन है। अब मैनेजर सबको नहीं बनाता है, मैनेजर पहले उसको मैनेजमेंट आना चाहिए ना, मैनेज करना आना चाहिए, उसमें वो कंपिटेंसी होना चाहिए, फिर इसके लिए नॉलेज चाहिए, इसके लिए, और सबके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिसोर्स। आप पर्सन को बोले जाओ टाइप करके लाओ, बोला टाइप मशीन ही नहीं है तो कैसे टाइप करेंगे, रिसोर्स होना चाहिए ना। आई थिंक गॉट इट। आप कुछ बोलोगे, साथ में उसको रिसोर्स भी देना होगा ना। आई थिंक गॉट द मीनिंग। सो competency also, power also, knowledge also, resource also. ठीक है। Concept of strategy. So, as I said in the beginning, full topic first to last will be just like we are revolving in one place only. पूरा समझ गए, लास्ट में मैंने द गेम ऑफ वर्ड्स,
Strategy relates to the ways the business decides to respond to dynamic and often hostile external forces. डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंज होता रहता है ये सब. हॉस्टाइल क्या है? सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट होता जा रहा है. ठीक है. While pursuing their vision, mission and ultimate objectives. So बिजनेस का क्या है? अपना एक विजन है, एक मिशन है, एक ऑब्जेक्ट है, फुलफिल करना है. ठीक है. सो स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान. जैसे होता है ना, आप बिजनेसमैन लोग से जब बात करोगे, आप पूछोगे आप सक्सेस कैसे किया, तो बोलता है ना हम ऐसा सोचा, ये किया, ऐसा किया, हम ऐसा किया, सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड किया, और लास्ट में टेस्ट को समझा, पब्लिक के डिमांड को समझा, ये वो. समझ गए? ये क्या है? बोला हम इस हिसाब से एक प्लान बनाया. जैसे गेम में क्या होता है, आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हो, क्या करने से हम विन करेंगे. तो बिजनेस भी ऐसे ही है. So strategy is a game plan that the management of a business uses to make market position. मार्केट में अपना पोजीशन बना. ठीक है. Conducts its operations, attract and satisfy customers, compete successfully and achieve organizational objectives. मार्केट में घुसेंगे, अपने को एस्टैब्लिश करेंगे, सबका कॉन्फिडेंस जीतेंगे, मार्केट में पोजीशन बनाएंगे और अपना ऑब्जेक्ट को फुलफिल करेंगे. ठीक है. वी मे डिफाइन द टर्म स्ट्रैटेजी एज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट. अब तो सब नया नया वर्ड है. वर्ड भी नया कुछ नहीं, सब पहले से. ब्लूप्रिंट सेम थिंग. करना क्या है? व्हाट इज योर प्लान प्रोग्राम? वही है, प्लानिंग ही है. तो बोला अपना बताओ क्या करना चाहते हो, माने क्या है वो? ब्लूप्रिंट. ठीक है. अब आपको एक आइडिया दे रहे हैं. बिग बिग बिजनेसमैन होता है. ठीक है. तो वहां पे आपको बताना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हो, और आपको सामने वाला को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है. इसको बोलते हैं पिच. पिच करना. पिच करना माने आपको टाइम दिया गया, आप बोलो, आप अपने प्लान प्रोग्राम बताओ, क्या करना चाहते हो, क्या जिससे सामने वाला आपका कॉन्फिडेंस आ जाए. ठीक है. तो एक ब्लूप्रिंट है. ठीक है. ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन्ड इमेज, direction and destination, that is what it wants to do. क्या करना चाहते हो, what it wants to do, to be, और आप क्या होना चाहते हो, करके क्या बनना चाहते हो. ठीक है. how it wants to do it things, और वो कैसे करेगा ये सब, and where it wants to go, और उसका फाइनल टारगेट क्या है. फाइनल टारगेट. तो जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, सक्सेसफुल लोग, उसमें से 90% बोलेगा कि प्लान प्रोग्राम से था. 10% बोलेगा मालूम नहीं कैसे क्या हो गया, सब हो गया, अपने आप हो गया. एक्सेप्शन डज नॉट मेक रूल. एक्सेप्शन एक्सेप्शन ही है. ठीक है ना. In large organizations, strategies are formulated at corporate level, divisional level, functional level. अब आपका जो स्ट्रैटेजी है वो कहां पर स्ट्रैटेजी हो रहा है. एक होता है कॉर्पोरेट लेवल, टॉप से शुरू हो रहा है. फिर बोला ने अगर उसका 4 डिवीजन है तो अलग अलग डिवीजन अपने हिसाब से प्लान बनाओ. होता है ना, एक हुआ के ऊपर से प्लान है उसको फॉलो करना है. एक होता है डिवीजन को दे दिया, डिवीजन में काम दे दिया, काम में बोला कि आप देखो कैसे करोगे, तो वो हो गया फंक्शनल लेवल. सो योर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या है? वर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी. टॉप में शुरू हुआ और लास्ट तक उसको भी स्कोप दिया, फ्लेक्सिबिलिटी का.
અને फाइनली जो वर्कर है, जो फाइनली इम्प्लीमेंटेशन, उसको भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिया। हर एक होता है नहीं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। सो इट मे बी एट कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल, और फंक्शन फंक्शनल लेवल। ठीक है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजर मैनेजर्स। अब है कि ये जो स्ट्रेटेजी है, तो कॉर्पोरेट में तो टॉप मैनेजर्स लोग बैठा हुआ है, दे विल फॉर्मुलेट। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ही बड़ा बड़ा स्ट्रेटजी। फिर से हम क्या बोले, ये टॉपिक क्या है, पूरा बिजनेस है, बट क्या है, कैलकुलेशन नहीं है, थ्योरी है। আমাদের মাস্টার ডিগ্রি তো প্রিন্সিপাল অফ मैनेजमेंट ठीक है, थ्योरी। प्लानिंग बट फाइनली ऑल जितना भी थ्योरी प्रैक्टिकल सब एप्लीकेशन है, इवन वट एवर थ्योरी यू स्टडी, ऑल आर प्रैक्टिकली अप्लाइड। हम लोग जितना भी थ्योरी पढ़ते हैं ना, कोई भी थ्योरी जितना पढ़ेंगे लास्ट में अप्लाइड। सो इफ theoretically strong, then only practically strong। ये समझे। इवन आपका जो अकाउंट्स होता है, आपको थ्योरी नहीं मालूम है, कंसेप्ट मालूम होगा तभी तो आगे बढ़ोगे। तो थ्योरी है, उसके बाद एप्लीकेशन होता है। टैक्स भी क्या है, हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल है, लेकिन भले थ्योरी है कि सीधा प्रैक्टिकल है। आगे सेक्शन को ना जानले लॉ तो थ्योरी में लिखा है, लॉ में वेयर एक्ट में क्या क्वेश्चन आंसर है, सब तो थ्योरी है। पूरा ना जानले तो पड़े उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है। ना जानले तो तो चलो, टुडे पर्पस दिस, अगेन विल कंटिन्यू। ओके। फिर